ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ଥରେ ଆଜିର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଭୋସନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲେ, ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଲୋକମୟ ଥାଏ, ଆଲୋକପାତ ଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏହି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଭୋସନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆସ ଆମେ ତାହା ଦେଖିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦେବେ ତାହା ଏକ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଟେ। ବିକଜ वी आर here to learn some great and good news from Bible. So ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ମାଥ୍ୟୁ ଆଜିର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କାଢି ପାରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ। ତ କିଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। 16:5 ମାଥ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର 5:16 କୁହାଯାଉଛି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। 17ରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଭାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ। ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସି ନାହିଁ, ବରଂ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। ସୋ ହିୟର ଦ ଭର୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 16ରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଭୀରତାର ବିଷୟ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଯେ କୁହାଯାଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ସୋ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋକ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁ, ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଏହି ଆଲୋକକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଧରିକି ଚାଲିଥାଉ ବା ନାମ ଦେଇଥାଉ। ଯେପରିକି ଆଲୋକକୁ ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାଉ, ଆଲୋକକୁ ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ତୁଳନା କରିଥାଉ, ଆଲୋକକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିଚୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁଳନା କରିଥାଉ। ଏଣ୍ଡ ଆଲୋକକୁ ଆମେ ଆନଏଣ୍ଟିଂ, ଆଲୋକକୁ ଶକ୍ତି, ଆଲୋକକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆଲୋକକୁ ମାନେ ପାୱାର ଅଫ ଟ୍ରୁଥ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିଥାଉ ନା ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତାର ବାହାର କରିଥାଉ। ସିମିଲାର ଦ ଆଲୋକ ଟକ୍ସ ଆବାଉଟ ହ୍ୱାଟ, ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଟକ୍ସ ଆବାଉଟ ହ୍ୱାଟ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଥାଉ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ମାନେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଦେନ୍ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଥିଙ୍ଗସ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ମାନଙ୍କର ଆଲୋକ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଆଲୋକ ନାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କିପରି ପାଇବ? ତ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବା କଥା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସେହି ଆଲୋକ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଯଦି ଆଲୋକ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଆଲୋକ କଣ ଅଟେ? ଥର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଯଦି ଆଲୋକ ଅଛି ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିଛି? ଯଦି 4 ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହାର ପାୱାର କଣ ଅଟେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସେ ପାୱାରଫୁଲ ଅଟେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଅଛି। ତ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଲୋକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଆଲୋକ କିପରି ଭାବରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ପଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଏକ ଆଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ନା, ଗୀତ ସଂହିତା 119 ତାର 105ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ।
गीत संहिता 119 अध्याय तार 105 रे लिखा जाए। तो आम से विषय जानूछु। तो सही समान विषय को आम जदि एही जगह जदि कनेक्ट करवा जे वाक्य हेउछि एक आलोक सदृश, जो आलोक कौन करे ना आम मान को रास्ता देखी था, आम मान को वाक्य को आहरी क्लियरली बुझे था। आम जीवन जदि आलोक अच्छी ताहले आम माने आम मानकर चरित्र, आम मानकर बिहेवियर, आम मानकर एटीट्यूड, आम मानकर थॉट, आम मानकर प्रत्येक विषय को माने कौन करिपारबा क्लियर करिपारबा विथ द वर्ड ऑफ गॉड, वाक्य द्वारा। आ वाक्य जदि अच्छी ताहले से व्यक्तिर आलोक कौन हेबो प्रकाश पाइब प्रकाश पाइब। प्रकाश पाइबार अर्थ यह नुहे जे आमे से विषय को जानी जीवा खाली। प्रकाश पाइबार अर्थ यह अटे आमे जानिला परे से विषय को किपरि करूछु, किपरि पालन करूछु, किपरि यूटिलाइज करूछु। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपके पास कितना वरदान है वो ज्यादा बड़ा विषय नहीं है, लेकिन बड़ा विषय ये है कि वो वरदान पाने के बाद आप क्या कर रहे हैं। आपके पास पैसा है, आप पैसे को लेके क्या कर रहे हैं। आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान लेके क्या कर रहे हैं। आपके पास बुद्धि है, आपके पास हेल्थ है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास जो कुछ भी आज परमेश्वर ने दिया है उसके वरदान के द्वारा वो मिला है। जदि आम पाखरे से विषय अच्छी ताहले आमे माने आज करूछु कोन, तुम्भ मानकर आलोक लोक मानक साक्षात प्रकाश पाओ। अगर हमारे पास वो वचन है जो वचन देहधारी होके हमारे जीवन में आया और परमेश्वर प्रकट किया अपने आप को वही लाइट के समान, तो वही लाइट को अगर हम दूसरों को नहीं दे पाते तो हमारे पास वो लाइट नहीं है बराबर का विषय। यदि वाक्य को जानिला परे जने व्यक्ति वाक्य को कही पारु नाही अन्य व्यक्ति को, सुसमाचार जानला परे सुसमाचार कही पारु नाही, तो प्रकाश किपरि पाइबो। बुझी पारछंती किपरि पाइबो प्रकाश। तो मानकर आलोक लोक मानक साक्षात रे प्रकाश पाओ। माने ऐसा लाइट का एक क्वालिटी ऐसा है, उसको बोलना नहीं पड़ता, वो साइलेंट रहता है। अगर अंधेरा जितना गहरा क्यों ना हो, लाइट का क्वालिटी होता है वो साइलेंट रहता है और वो अपना अपने अपने बॉडी का चमक को दिखाता है। जैसे कि जदि धरिनियंतु मु गोटे पोशाक पिंधिछि आ मो पोशाक रे मोर ड्रेस रे सबुआडे लाइट लागिछि आ गोटे बहुत बड़ अंधकार रास्ता रे मु चलिकी जाउछि, मते किछि करबा आवश्यक नुहे, सही लाइट ही मते ऑटोमेटिकली रास्ता देखैकी जीवो। बुझी पारछंती। सो उसी तरह अगर हमारे जीवन में सच्चाई है, हमारे जीवन में प्रभु का वचन है, हमारे जीवन में एक ऐसा रोशनी परमेश्वर ने दिया है जो रोशनी हमको क्या करता है ना, दिन प्रतिदिन वो साफ करता है, पाक करता है, पवित्र करता है और लोगों के सामने खड़े होने के लिए मौका देता है। तो हमको समझना बहुत जरूरी है वो लाइट परमेश्वर का वचन है। तो मानकर आलोक लोक मानक साक्षात प्रकाश पाओ। व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? क्योंकि अगर हमारे पास वो लाइट है तो हमको बोलना नहीं पड़ेगा, लोग खुद ब खुद उसको देख के पता चल जाएगा उनको कि इनके पास क्या है। ये है लाइट का क्वालिटी। लाइट के क्वालिटी को कोई भी उसको दबा नहीं सकता। बुझी पारुछु हमें। तो गोटे आलोक और क्वालिटी को हमें देख। उसके बाद नीचे क्या लिखा गया है, तुमर आलोक लोक मान साक्षात प्रकाश पाऊ जेपरी से माने तुम मानकर सत्कर्म देखी तुम मान स्वर्गस्थ पितांकर महिमा कीर्तन करिवे। वंडरफुल लिखा जाइछि, तुम मानकर सत्कर्म देखी कौन करिवे, जेपरी से माने तुम मानकर सत्कर्म देखी तुम मानकर स्वर्गस्थ पितांकर। मतलब ये आपके बारे में बोला गया है और दूसरे लोगों के बारे में बोला गया है कि परमेश्वर किसके द्वारा महिमा पाएगा। आजिर कॉन्टेक्स्ट आमे देखुछु एही पॉइंट्स रे देखुछु स्वर्गस्थ पितांकर महिमा कीर्तन तांकर नाम द्वारा नुहे बल्कि आमर कार्य द्वारा हेबो। आज आज जदि आमे एही पद को जदि ओपोजिट भाव जदि देखिबा जे तुम मानकर सत्कर्म देखी तुम मानकर स्वर्गस्थ पितांकर महिमा कीर्तन हेबो करिबे बोली लोक लेखा जाइछि, किंतु तुम मानकर असत कर्म देखी तुम मानकर स्वर्गस्थ पितांकर कोन महिमा कीर्तन करि परिबे। महिमा कीर्तन कोन हेबो, गोटे व्यक्तिर सत्कर्म आ गोटे व्यक्तिर असत कर्म
गुड एंड बैड दुईटी विषय आम देखुचु। आज आमे परमेश्वर को कैरी करिथाउ, परमेश्वर आइडेंटिटी को आमे कैरी करिथाउ, परमेश्वर से ही उत्तमता को कैरी करिथाउ। आप सुने होंगे, अरे बाप रे ये तो क्रिश्चियन लोग हैं, कैसे ऐसे काम कर सकते हैं। अरे बाप रे ये तो क्रिश्चियन लोग हैं, कैसे ऐसे खाना पीना को ध्यान दे सकते हैं। क्रिश्चियन 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 परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लोग। परमेश्वर लोक ही किपरि एपरि काम करुछि ये। ईश्वर निंदा आमे करुअछु, परमेश्वर निंदा जेतेबेले कहा जाउअछि सत्कर्म देखि तुम मानक स्वर्गस्थ पितांकर महिमा कीर्तन हेबो। माने आमर सत्कर्म जदि नाही ताले मन रखंतु आमे माने ईश्वर को निंदा करुअछु। ईश्वर महिमा जो जगार हेबा कथा से जगार अगौरवर कार्य आमे माने करुअछु, जहाँकि परमेश्वर केबे पसंद करंती नाही। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आम मान को से दायित्व देछन जे मेरा बेटा जा, तुझे मैं आज वही अभिषेक दे रहा हूँ, वही काम दे रहा हूँ, वही चीज को दे के तुझे भेज रहा हूँ, ताकि तेरे नाम के द्वारा मुझे महिमा मिले ना। हम गाते हैं ना, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तू बढ़े मैं घटूं। लेकिन क्या होता है, मैं बढ़ूं तू घटे, ऐसा हो रहा है। हाँ? मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, ये कहाँ हो रहा है। मेरे जीवन से महिमा कब मिलेगा, जब मेरा जीवन तो अच्छा होगा तब मिलेगा। तो वचन में यहाँ कहा जाउछि क्लियरली जे जेपरि से माने तुम मानकर सत्कर्म देखी। याद रखना बहुत जरूरी है, जदि प्रभु आज आम मानकु जीवन देइछंती, ख्रिस्टियन कहिबार अधिकार जदि आमे पाइछु, प्रभुंकर संतानर अधिकार पाइछु, ओके, उत्तम जीवन काटिबार अधिकार पाइछु। आज हमको परमेश्वर कुछ भी चीजों का कमी नहीं किया है। प्रभु सब विषय आज हमको दिए। तामाने कौन करबा आवश्यक अटे, आम पाखरे कौन सत्कर्म अछि कि? आज कौन लोक माने देखिकी कहउछंती वाओ व्हाट ए पर्सन, हां ए व्यक्ति को देखिले मते बहुत भल लगे, ये ईश्वरଙ୍କ सहित एक उत्तम जीवन यापन काटू अछि। हां ना अपोजिट कहउछंती केनता लोक माने तुमे क्रिश्चियन हिकर एंती करूछ, हां प्रभु को जानी कि मध्य तुमे किपर एंती करूछ, या कहउछंती ना उत्तम कथा कहउछंती। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। आज शिक्षा रे आमे देखुअछु जे ख्रिस्टियन प्रभु को जानिला परे आम मानक मध्य रे गोटे सत्कर्म थिबा कथा, उत्तम कार्य थिबा कथा, उत्तम बिहेवियर, उत्तम आइडेंटिफिकेशन करि पारुथुवा कथा लोक माने। तो सेतिर लगी आमे जदि करू नाहु ताहले आमे परमेश्वर को अगौरव करूअछु। आमे माने ईश्वर को आमर स्वर्गस्थ पितांकर महिमा कीर्तन करि पारु नाहु। स्वर्गस्थ पितांकर महिमा कीर्तन केवल गोटे माध्यम आमे करि परिबा। आमे माने जदि भल हेबा ताहले से मध्य आमानकर नाम द्वारा से महिमा पाइबे, गौरव पाइबे। मैं चाहता हूं आज के दिन हम अपने आप को एक बार पूछें कि मेरा काम जो है वो काम कैसा है, मैं आज जो कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, मोर काम द्वारा कौन प्रभु महिमा पाउछंती कि? मो परिवार को प्रेम करे, बहुत भल कथा। मोर काम को प्रेम करे, बहुत भल कथा। मोर लोक को प्रेम करे, बहुत भल कथा। मोर चर्च को प्रेम करे, मोर मंडली को, मोर विश्वासी मान को, मोर समस्त को प्रेम करे, बहुत भल कथा। किंतु प्रश्न यह अटे, आपणकर कार्य द्वारा प्रभु कौन महिमा पाइछंती कि? आपणकर सत्कर्म सेटा वास्तव रे सेटा को सत्कर्म आमे कहूछु कि? सत्कर्मर अर्थ बहुत भिन्न अटे। सत्कर्म अर्थ ईश्वरଙ୍କ राज्य पाई जदि किछि करूछु ताहाकु सत्कर्म बोली कहा जाए, ईश्वरଙ୍କର राज्य पाई। कारण कर्म बिना विश्वास मृत। आज यदि हम मानक पाखरे कर्म ही नाही ताहले हमर विश्वास देखा जीव नाही। यदि विश्वास देखा जाऊ नाही ताहले विश्वास द्वारा तुमे जे अनंत जीवन प्राप्त होई अछ एहा जानि रख बोली मध्य सेही पद को माने बारंबार मने परिबा कथा। बुझी पारले मु कोन कहिली? कर्म बिना विश्वास मृत।
ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି କହିପାରିବା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେ ଆର୍ ଦ ରାଇଚିୟସ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯଦି ତାହା ପଛରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବିକଜ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଆମେ ଏହି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଭୋସନରେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ବିଷୟ ରହିବା କଥା ଯାହାକି ଆମମାନେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କଥା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଜଏନ୍ କରିଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ କହିବା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ଆଜିର ଏହି ଡିଭୋସନ ପାଇଁ, ଆଜିର ଏହି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କହିଲ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅସତ୍ କର୍ମ କରିଅଛୁ, ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟ କହିଥିବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହିଅଛ ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ସେ ମହିମା ପାଇବେ। ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମହିମା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆସୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ଆମେ ନିଜକୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ, ଆଜିର ଏହି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୁମେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ସମୟ ଦେଲ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲ ବୋଲି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମହିମା ପରାକ୍ରମ ଗୌରବରେ ଶୋଭା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଅଟ। ସବୁ ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।